بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ نورالعین نے کنگا کر کے اپنے سیاہ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ حسب معمول بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے مڑ کر دیکھا۔ اماں کی آنکھ آج جلد لگ گئی تھی۔ ان کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اماں کے جلد سو جانے کا مطلب اس کی آزادی ہوتا تھا۔ اس نے آج پھر سجنے سنورنے کا ارادہ کیا۔ وہ برانڈڈ کپڑوں، زیورات اور میک اپ کی دل دادا تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کی اماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ لوگوں کے کپڑے سی سی کر اس کا اور اپنا پیٹ پالتی رہی تھی۔ جب سے وہ جوان ہوئی تھی، اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے اماں ہانپنے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے زرتار خواب سجے تھے کہ اماں ان سے اکثر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے نزدیک امیر ہونا ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے نصیبوں کو کوستی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک غریب گھر میں پیدا کیا ہے۔ اماں اکثر اس کی اس ناشکری کی عادت سے تنگ آ کر اسے برا بھلا سنا دیتی تھی، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ اسے دونوں کانوں کا مؤثر استعمال خوب آتا تھا۔ آج بھی اماں کو سوتے دیکھ کر اس نے پلان بنا لیا تھا کہ آج اسے ایشوریہ رائے کی طرح تیار ہونا تھا۔ اماں کی نیند اس وقت اسے نعمت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اماں کے جاگتے ہوئے اس کا سجنا سورنا ناممکن تھا۔ انہیں کنواری لڑکیوں کا بال کھولنا، سجنا سورنا، مٹکنا، ادائیں دکھانا سب سخت ناپسند تھا۔ اس نے اماں کی الماری سے ان کا سرخ شادی کا مکیش سے بھرا جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ پھر اس نے چپکے سے جیولری باکس میں سے اماں کی جوانی کی پائلیں نکالی اور اپنے گورے گورے پیروں میں باندھ لی۔ اس نے چوڑیوں کے سٹینڈ سے سرخ اور سبز چوڑیاں نکالی اور انہیں کلائی بھر پہن لیا۔ اس نے پھر ڈرتے ڈرتے سرخ لپسٹک بھی ہونٹوں پر لگا لی۔ آخر میں اماں کا عطر بھی ڈھیر سارا خود پر چھڑک لیا۔ اپنا بجلیاں گراتا عکس دیکھ کر وہ خود ہی دل میں اترا اٹھی۔ اس نے ہولے سے آئینے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بول رے بول آئینے، کیا مجھ سے حسین نازنی کبھی تو نے دیکھی ہے؟ آئینے کی خاموشی پر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے اپنی طرف سے ایشوریہ رائے کی طرح پورا پوز بنا لیا اور ہاتھ سے ایک ادا سے آئینے کی جانب اشارہ کیا اور ہولے سے بولی، دھت بدھو، ہو گیا نا دم بخود۔ وہ ایک ادا سے لہراتی مٹکتی ہوئی باہر چلی آئی۔ اس کے سیاہ طویل زلفوں میں اب تک پانی کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ اس نے عمر کی 20ویں سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ حال ہی میں BA پاس کیا تھا اور آج کل گھرداری کے امور دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا فارغ وقت رسالے پڑھتے اور فلمیں دیکھتے گزرتا تھا۔ انہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی کوئی شہزادہ اسے بیاہ کر دور دیس لے جائے گا۔ وہ اور اس کا شہزادہ پھر ہمیشہ محبت کی پینگیں ہی جھولتے رہیں گے۔ اس کی آنے والی خوش رنگ زندگی میں بیوہ ماں کی موجودگی کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی اماں سے ملنے آیا کرے گی۔ وہ جلد از جلد اماں کے ساتھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بہکتے قدم اور رنگ ڈھنگ دیکھتے ہوئے اماں اس کے رشتے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے اماں سے صاف صاف کہا تھا کہ اس کے لیے کسی امیر لڑکے کا رشتہ دیکھیں۔ اماں نے اسے 1000 بار کہا کہ ایک امیر کبھی لڑکا ہم سے رشتہ کیوں جوڑے گا؟ اس پر نورالعین نے اٹھلا کر کہا تھا، اماں میرا رنگ روپ کیا کسی دولت سے کم ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ مگر ابھی تک اسے اپنا من پسند رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ نورالعین عمر کے اس حصے میں تھی جہاں آنکھیں خود بخود خواب بننے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ہر آہٹ پر کسی کے آنے کا گماں ہوتا ہے۔ ہر خوبصورت چہرہ، مہربان مسکراہٹ ایک الفت کا سامان بن جاتی تھی۔ کچھ اس کی خود غرضی بھی اسے خوابوں کی دنیا میں مدہوش رکھتی تھی۔ وہ رات کے اس پہر بھی اپنے سہانے خیالوں میں ڈوبی لہکتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ اس کی پائل ہلکی سی آواز سے چھن چھن کر رہی تھی۔ وہ خود ہی اس کی صدا سن کر مسکرا رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے چھت پر چلی آئی۔ چھت پر مدھر ہوا کے جھونکے اس کو گدگدانے لگے۔ ماہ مارچ کا آغاز تھا۔ موسم بہت معتدل تھا۔
आसमान पर पूरा चांद जगमगा रहा था। आसमान पर सितारों की कहकशां एक अजीब नजारा पेश कर रही थी। उसने आसमान को देखकर अपने सितारों भरे आंचल को अपने सर पर फैला लिया। वो आंखें बंद करके गोल गोल घूमने लगी और कहने लगी, बोल रे आसमां, तेरा सितारों से भरा दामन ज्यादा दिल फरेब है या झिलमिलाते सितारों से भरी मेरी ये चुंदरी? अचानक किसी मर्दाना आवाज ने उसके कान में सरगोशी की, तुम्हारी चुंदरी। वो सहम सी गई। उसने फट से आंखें खोली। वो छत पर अकेली ही थी। उसे मालूम था कि खाला शन्नो का घर, जिसकी छत उनकी छत से मिली हुई है, वो उनकी वफात के बाद से कई सालों से बंद था, जबकि खाला रजिया दूसरी जानिब की पड़ोसन अकेली रहती थी। उनके बेटे और मियाँ बैरून मुल्क मुकीम थे। उसने बेकरारी से हर तरफ नजर दौड़ाई, मगर निस शब के इस पहर कोई भी उसे किसी छत पर नजर नहीं आया। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी की पुरशौक निगाहों के घेरे में थी, मगर दर हकीकत उसके इर्द गिर्द कोई जी रूह मौजूद नहीं थी। उसने कपकपाते होंठों से लरसती हुई आवाज में पूछा, कौन है? मगर चारों तरफ सिर्फ हवा की सरसराहट ही सुनाई दी। उसकी आवाज की बाज़गश्त ही वापस उसे सुनाई दी। खुली छत पर आवाज की बाज़गश्त पैदा होना एक अजीब सी बात थी। वो खौफसदा सी होकर सीढ़ियां उतरने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई भारी कदमों से उसके पीछे सीढ़ियां उतर रहा है। खौफ के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मुड़कर फटी फटी आवाज में बोली, कौन है? पता नहीं कहां से एक शरारती हवा का झोंका उसके बाल बिखेर गया, मगर उसे ऐसे लगा जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसके बाल बिखराए हैं। उसने खौफजदा होकर इर्द गिर्द देखा और भागती हुई सीढ़ियां उतर गई। वो तेजी से अम्मा के कमरे की तरफ लपकी, मगर अचानक किसी ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली और अपनी जानिब उसे खींचा। गिरफ्त यकीनन मर्दाना थी। वो किसी के चौड़े चकले सीने से टकरा गई। उसके मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसको जब दोबारा होश आया तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी। अम्मा उसके सिरहाने फिक्रमंद बैठी थी। उसने उठने की कोशिश की तो उसे कमजोरी से चक्कर सा आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैर मसहरी से बंधे हुए थे। वो कमजोर आवाज में बोली, अम्मा, मुझे दर्द हो रहा है, रस्सियां खोलो। अम्मा ने बेयकीनी के आलम में उसे देखा और दीवाना वार उसे चूमने लगी। वो बार बार कहती जाती थी, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची सही हो गई। वो ना समझी से उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब अम्मा के हवास बचा हुए तो उन्होंने उसे बताया, बेटा, जुमेरात की आधी रात को तुम मेरी शादी का जोड़ा पहने दुल्हन की मानन सजी संवरी न जाने बाहर क्या कर रही थी। किसी हवाई चीज से डरकर तुम सेहन में बेहोश हो गई थी। फिर 3 दिन तुम बुखार से फिनकती रही और नींद बेहोशी के आलम में बार बार घर से निकलने की कोशिश करती रही थी। मेरे रोकने पर तुमने मुश्तइल होकर मुझ पर हमला कर दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि तुम किसी हवाई चीज के ज़ेरे असर थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम खुद को या मुझे कोई नुकसान पहुंचाओ, इसलिए मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। उसने हैरत से अम्मा की जानिब देखा। अम्मा ने उसकी आंखों में बेयकीनी देखी तो उन्होंने उसे अपनी गर्दन, हाथ और जिस्म पर पड़े चोटों के निशानात दिखाए। अम्मा की चोटें देखकर वो सिसक पड़ी और रोते हुए अम्मा से माफी मांगने लगी। वो जानती थी कि अम्मा ने बेवा होने के बाद सिर्फ उसकी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। अम्मा ने उसके लंबे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने चंद कुरानी आयात लिखकर उन्हें अपने लॉकेट में डालकर तुम्हारे गले में डाला है। उसे बेटा तुम उतारना नहीं। नूरुलैन ने नासमझी से सर हिला दिया। जिंदगी दोबारा अपनी रूटीन पर चल पड़ी। अम्मा नूरुलैन को नमाज पढ़ने और तिलावत करने की याद दहानी करवाती रहती। वो शाज़ नाज़िर ही नमाज पढ़ती। वो ज्यादातर वक्त डाइजेस्ट पढ़ने में सर्व करती। हर नई फिल्म को देखती। खुद को डाइजेस्टों और फिल्मों की हीरोइन तस्वुर करते हुए घंटों गानों पर कमरा बंद करके रक्स करती। गर्ज इन्हीं मसरूफियात में यूं ही दिन बसर हो रहे थे। गर्मियों की एक शाम अम्मा के कहने पर नूरुलैन कपड़े छत से उतारने गई तो उसे एहसास हुआ कि शन्नो खाला के घर कुछ लोग शिफ्ट हो चुके थे। उसे छत पर एक गहरी स्याह आंखों वाला गबरू जवान नजर आया। उसने कनखियों से उसे देखा। उसे एहसास हुआ कि वो भी पुरशौक नजरों से उसे ही तक रहा था। उसने उसे नजरअंदाज करते हुए सीढ़ियों की जानिब जाना चाहा तो वो उसे मुखातिब करते हुए बोला, ये जामुन अभी मैंने उतारे हैं, बहुत मीठे और रस भरे हैं, हमारी जरूरत से जायद हैं, ये आप ले लीजिए। नूरुलैन उसके करीब झिझकते हुए गई। अजनबी की मुस्कुराहट भी बहुत पुरकशिश थी।
اس کا سارا چہرہ اس کی مسکراہٹ کے باعث دل فریب لگ رہا تھا. اس کے گالوں پر پڑے ڈمپل انتہائی جاذب نظر لگ رہے تھے. نورالعین نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا اجنبی کچھ ٹھٹک سا گیا. اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی. اس نے اسٹیل کی پلیٹ مشترکہ دیوار پر رکھ دی. نورالعین نے جھجکتے ہوئے پلیٹ اٹھا لی. اجنبی گہری آواز میں بولا, فی الوقت میں اکیلا ہی اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں. کچھ دنوں تک میرے گھر والے بھی آ جائیں گے. نورالعین بے اختیار ہی مسکرا کر بولی, کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. اجنبی کی نگاہیں اس کے گلے میں پہنے ہوئے خاندانی لاکٹ پر مرکوز تھی. یہ لاکٹ سونے کی ایک لمبی چین تھی جس کے اندر کتاب کی شکل کا پینڈنٹ لگا ہوا تھا. پینڈنٹ پر بہت خوبصورت قیمتی جڑاؤ پتھروں کا کام اور نقاشی ہوئی تھی. اس کا کلپ دبانے سے وہ کھل جاتا تھا. اماں نے اس کے اندر ہی قرآن پاک کی چند آیات لکھ کر رکھ دی تھی. نورالعین نے اس پر انگلی رکھتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا, آپ کو لگتا ہے ہمارا لاکٹ بہت پسند آیا ہے. ہماری اماں کا خاندانی لاکٹ ہے, نسلوں سے یہ ہمارے گھرانے میں چلا آ رہا ہے. اجنبی نے سر ہلاتے ہوئے کہا, جی مجھے اندازہ ہو گیا تھا, میں جوہری ہوں, اس لیے نوادرات کی پہچان بخوبی رکھتا ہوں. یعنی اجنبی باحیثیت بھی تھا. اس کی دلی خواہش تھی کہ اسے وجیح اور امیر شخص کا ساتھ نصیب ہو. اجنبی بہت سنجیدگی سے بولا, میرا نام اساتیر ہے. ہم نے ذاتی کوٹھی ڈیفنس میں خریدی ہے. قبضہ کچھ ماہ بعد ملنا ہے, اس لیے یہ گھر بھی بطور سرمایہ کاری خرید لیا ہے. نورالعین نے جامنوں سے بھری پلیٹ اٹھائی, کپڑے دوسرے ہاتھ میں تھامے اور مسکراتی ہوئی نیچے اتر آئی. اس کا دل کیا کہ اماں کو اساتیر کی آمد کے بارے میں بتائے, مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا کہ وہ تنہا رہتا ہے تو اس کا چھت پر جانا بند ہو جائے گا. یہ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا. اماں اس کے ہاتھ میں جامن دیکھتے ہوئے بولی, بیٹا خالی مکانوں میں نہیں جاتے, وہاں جن اور دیگر ہوائی چیزیں مقیم ہونے لگتی ہیں. تو مغرب کے وقت درختوں کے گرد منڈلاتی پھر رہی ہے. عقل کر بچی. نورالعین نے جامن دھو کر کھاتے ہوئے ٹھنک کر کہا, اماں جن اور ہوائی چیزیں اتنی فارغ نہیں ہیں کہ خالہ شنو کے کھنڈر گھر کو رہائش کے لیے چنیں. آخرکار جنوں کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے. اماں بڑبڑاتی ہوئی وضو کرنے چل پڑی. انہوں نے اسے بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا, مگر نورالعین نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور فلم دیکھنے بیٹھ گئی. رات کو اماں طبیعت کی خرابی کے باعث جلد سو گئی اور اس کی تو جیسے مراد بر آئی. وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی. اس نے اپنی الماری سے گوٹے والی زرد رنگ کی پشواس اور چوڑی دار پاجامہ نکالا اور سجنے سنورنے میں مصروف ہو گئی. وہ کچھ ماہ پہلے پیش آئے واقعے کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول چکی تھی. وہ تیار ہو کر پائل پہنے سج سنور کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہولے ہولے گنگنانے لگی, سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے. چھت پر پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی. آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. چاند چاندنی کی تھالی کے مانند آسمان کے وسط میں ٹکا ہوا تھا. سمندر سے آنے والی ہوا اس کی کھلی زلفوں سے اٹکھیلیاں کرنے میں مصروف تھی. وہ بھی آنکھیں بند کیے جذب میں گنگنانے میں مصروف تھی. اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اس نے ارد گرد دیکھا مگر اسے فوری طور پر کوئی نظر نہیں آیا. اس نے سر جھٹکا اور چھت پر پڑے موتیے کے گملوں سے پھول اتارنے میں مصروف ہو گئی. اماں نے بے شمار پھولدار پودے گملوں میں لگا کر چھت پر رکھے ہوئے تھے. اس وقت ان کے باعث فضا مہک رہی تھی. رات کی رانی کی میٹھی خوشبو سب خوشبوؤں پر حاوی تھی. وہ پھول اتارتے اتارتے خالہ شنو کی چھت کی دیوار کے قریب پہنچی. اچانک اسے اندھیرے میں دو چمکتی آنکھیں اپنے انتہائی نزدیک نظر آئیں. وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی مگر پھر اسے احساس ہوا کہ درمیانی دیوار پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس اساتیر بیٹھا اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. عجب بات یہ تھی کہ اس وقت اس کی آنکھیں سبز محسوس ہو رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے دو دیے جل رہے تھے. گھبراہٹ میں نورالعین کے دوپٹے میں جمع شدہ سارے موتی کے پھول گر گئے. کچھ پھول اساتیر کے بالوں میں ٹک گئے. اساتیر اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ بے اختیار بولی, آپ نے تو ڈرا دیا مجھے. اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو. اساتیر بھاری آواز میں بولا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. میں تو پہلے سے یہاں بیٹھا تھا, آپ بعد میں آئی ہیں. ویسے کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ اس نے اس کے سجے سنورے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا. وہ ان کی چھت پر کود آیا تھا اور زمین پر گرے پھول سمیٹنے لگا. نور کو اچانک ڈر سا محسوس ہوا. وہ رات کے اس پہرے اجنبی نوجوان کے سامنے سجی دھجی اکیلی موجود تھی, مگر اساتیر اس کے خوف سے بے نیاز پھول اکٹھے کرنے میں مصروف تھا. پھر
उसने अचानक तमाम फूल उसके ऊपर निछावर कर दिए। ज्यादातर फूल उसकी दराज जुल्फों में अटक गए। नूर बेख्तियार ही शर्म से छुई मुई बन गई। असतीर एक जज्ब के आलम में उसकी तरफ बढ़ा, मगर फिर न जाने क्यों थम सा गया। नूर शर्माते हुए बोली, मैं नीचे चलती हूँ, कहीं अम्मा उठ ना जाए। असतीर ने हल्के से सर हिला दिया और अपने घर की छत की तरफ कूदकर चला गया। नूरुलैन गुनगुनाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई। उसे यकीन हो गया था कि असतीर उस पर मर चुका है। वो अपनी आंखों में खूबसूरत ख्वाब सजाए सो गई। अलग सुबह उसकी आंख अम्मा की आवाज से खुली। दूर मौलवी साहब नमाज फजर के लिए अजान दे रहे थे, मगर गुज़िश्ता रात के लेट नाइट एडवेंचर के बायस उससे उठा ही नहीं गया। वो करती करवट बदल कर फिर सो गई। दिन चढ़े जब वो सोकर उठी तो अम्मा का मूड बहुत खराब था, मगर उसने अपने रवायती प्यार और मोहब्बत से उन्हें मना लिया। उसको दोपहर में अम्मा के कैलूले के वक्त में जैसे ही मोहलत मिली, वो सीढ़ियां फलांगती बिला झिझक छत पर आ पहुंची। उसने बेकरारी से शन्नो खाला की छत पर झांका, मगर उसे वो दुश्मन जान कहीं नजर नहीं आया। उसके दिल में न जाने क्या आया। वो जस्त लगाकर शन्नो खाला की छत पर कूद गई। दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसे बहुत हैरत हुई। घर का सहन हुनूस बहुत गंदा था। जा बजा दरख्तों के पत्तों के ढेर, हड्डियां और गोबर पड़ा हुआ था। एक अजीब सी बदबू उस घर में फैली हुई थी। उसे याद आया कि अम्मा अक्सर कहती थी कि जिनों की खुराक हड्डियां और गोबर होता है। उसे खुद ब खुद ही अपनी अहमकाना सोच पर हंसी आ गई। मुंह खोलकर हंसने के बायस बदबू उसके नाक में बस सी गई थी। उसने नागवारी से बेख्तियार ही दुपट्टे को नाक पर रख लिया और बड़बड़ाई, तौबा तौबा, कितने गंदे हैं आप असतीर। ये कहने की देर थी कि एक पला हुआ बिल्ला दीवार पर चलते हुए उसके सामने आ पहुंचा। उसकी आंखें सब त्यों की मानंद दमक रही थीं। उसको बेख्तियार ही असतीर की आंखें याद आ गई। वो नाक पर दुपट्टा रखे सहन से कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में दाखिल होकर वो एक लम्हे के लिए चकरा सी गई। वो कमरा किसी तौर खाला शन्नो के पुराने घर का कमरा नहीं था। वो कमरा निहायत ही आरास्ता था। भारी आपनूस की लकड़ी का मनकश फर्नीचर, मुअत्तर फिजा, जा बजा जलते शमादान, कमरे में भारी पर्दे खींचे हुए थे। किसी कमरे से किसी मुगन्निया के गाने की सुरीली आवाज आ रही थी। नूरुलैन सहरज़दा सी होकर कमरे का दरवाजा खोलने लगी, पर झिझकते हुए बाहर निकली। उसके सामने एक तवील राहदारी मौजूद थी। उसने बेयकीनी से इर्द गिर्द देखा। 5 मरले के पुराने घर का नक्शा इस वक्त बदला हुआ लग रहा था। उसे लगा जैसे खाला शन्नो का घर एकड़ों के रकबे पर मुहित हो गया है। उसका माथा पसीने से भर सा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास था कि वो किसी जादू नगरी में आ गई है। उसे अपनी कल ही पढ़ी हुई किताब एली का ख्वाब नगर याद आ गई। अचानक एक कमरे से एक हसीन लड़की बरामद हुई। उसने जामनी रंग का गरारा सूट पहना हुआ था। उसके जेवरात बहुत कीमती और जड़ाऊ थे। वो उसे देखकर मुस्कुराई और बड़ी बेतकल्लुफी से बोली, अरे नूर, तुम कब आई? उसने हैरत से उसकी जानिब देखा और हकलाते हुए बोली, तुम कौन? ये कौन सी जगह है? लड़की कहकहा लगाकर हंस पड़ी और बोली, भाई क्यों इतना डर रही हो? मैं असतीर की बहन लाफीन हूँ। कल ही अम्मा, मैं और दीगर बहन भाई इधर शिफ्ट हुए हैं। असतीर को दिल देते हुए तुमने 1 मिनट नहीं सोचा था, अब मेरे सामने बन रही हो। नूरुलैन शर्म से सुर्ख हो गई। वो लज्जा कर बोली, आपा मैं चलती हूँ। लाफीन उसके आगे एकदम खड़ी हो गई, मगर फिर उसकी निगाह उसके गले में पड़े जड़ाऊ लॉकेट पर पड़ी। उसका रंग बदल गया। वो हकलाते हुए बोली, इतनी जल्दी क्यों? चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। मेरे कपड़े और जेवरात अभी अभी अलमारियों में लगाए हैं। नूरुलैन हमेशा से कपड़ों और जेवरात की दिलदादा थी। उसकी छठी हिस्स ने उसे रोकना चाहा, मगर वो तमाम तर ख्यालात को झटक कर लाफैन के साथ चल पड़ी। लाफैन का कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। कमरे में गोल्डन रंग का फर्नीचर था। मध्यम रोशनी के गोल्डन लैंप जल रहे थे। कमरे में जा बजा कैंडल्स जल रही थी। नूरुलैन हर चीज को हाथ लगा लगा कर देख रही थी। उसे पता चल चुका था कि असतीर का खानदान बहुत अमीर कबीर था। लाफैन ने अपने कपड़े उसे दिखाने शुरू किए। हर कपड़ा दूसरे कपड़े से बेहतर था। जरी, जरबफ्त, गोटे, बनारसी, सलमा सितारों वाले कपड़े नित नए डिजाइनर्स के सिले हुए थे। लाफैन ने नूरुलैन की हसरत महसूस की तो मुस्कुराकर बोली, नूर, इनमें से कोई भी जोड़ा तुम तोहफे के तौर पर कबूल करो। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। वो तो जैसे मौके के इंतजार में थी। उसने स्याह रंग के बनारसी शरारे का इंतखाब किया और फटाफट कमरे के कोने में पड़े डाइवर्डर के पीछे कपड़े बदलने लगी। गोल्डन चोली, काले बनारसी गरारे और काले और गोल्डन दुपट्टे में उसका रंग रूप निखर आया था।
वो दीवार गिर आईने में अपना अक्स देखकर शर्मा उठी। लाफैन ने उसके आगे अपनी ज्वेलरी बॉक्सेस खोल दिए। वो ज्वेलरी बॉक्सेस खूबसूरत जड़ाऊ सोने के जेवरात से भरे हुए थे। उसका तो मन ही मचल उठा। उसने फटाफट झुमके कानों में पहन लिए, 2-3 अंगूठियां अपने मखरूती उंगलियों में पहन ली। उसने आईने में देखा, वो असहद हसीन लग रही थी। इतने में लाफैन जड़ाऊ हार अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ी। उसने हंसते हुए कहा, ये लॉकेट उतार कर सिंगार मेज पर रख दो और ये जड़ाऊ हार पहन लो। नूरुलैन की निगाहें तो जेवरात की चमक से खीरा हो चुकी थी। उसने 1 मिनट नहीं लगाया और लॉकेट गर्दन से उतार कर सिंगार मेज पर रख दिया और फटाफट जड़ाऊ हार पहन लिया। लाफैन ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर मेकअप शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपना अक्स देखकर हैरान रह गई। वो वाकई एक दुल्हन लग रही थी। उसका होशरुबा हुस्न परियों की मानंद चमक रहा था। वो सहरज़दा सी अपने आप को आईने में तकती रह गई। काफी देर बाद जब उसे होश आया कि वो दीवानावार खुद को ही तक रही है तो वो झेंप सी गई। उसने मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। उसे एहसास हुआ कि उसे घर से आए बहुत देर हो चुकी है और अम्मा के जाग जाने की सूरत में उसकी शामत पक्की है। वो परेशानी के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुआ था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। लाफैन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वो घबराते हुए बोली, लाफैन, लाफैन, मजाक मत करो, बाहर आ जाओ, मुझे जाना है। मगर उसकी आवाज कमरे में ही गूंज कर रह गई। एकदम कमरे में अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बहुत नजदीक खड़ा सांसें ले रहा है। उसके इर्द गिर्द सल्फर की शदीद बदबू फैल गई। खौफ के मारे उसका दम घुटने लगा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, कौन है? अचानक किसी ने मोमबत्ती जलाई। उसने देखा उसके बहुत नजदीक असातीर खड़ा था। उसकी आंखें सब दियों की मानंद दमक रही थी। वो कंफ्यूज सी होकर बोली, असातीर, आप कब आए? वो आपकी बहन लाफैन कहाँ गई? असातीर की आंखों में कुछ अजीब सा तासुर था जिसने उसे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में ख्वाहिश का जहां आबाद था। उसके अंदाज कुछ और कहानी बयान कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगी। पीछे हटते हटते वो ड्रेसिंग टेबल से जा टकराई। अब मजीद पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। नूरुलैन की सांसें अटकने लगी। असातीर के तेवर अच्छे हरगिज नहीं थे। उसने उसे दबोच कर अपने गले से लगा लिया। नूरुलैन का दिल उछलकर हलक में आ गया। असातीर के तेवर उसे दहला रहे थे। उसका अंदाज बहुत जारहाना था। वो उसको भींचते हुए बोला, कितने महीनों से मैं तुम्हारी चाह में तड़प रहा था। तुम छत पर सच धज कर खुशबू लगाकर मुझे ही बुलाने जाती थी ना। नूरुलैन की सांसें अटकने सी लगी। उसने अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद करने की जद्दोजहद करते हुए कहा, क्या मतलब है? असातीर दीवानावार कहकहा लगाकर हंसा और बोला, मार्च की वो सुहानी रात भूल गई जब सितारों भरी ओढ़नी ओढ़े तुम छत पर कर मस्तियां कर रही थी। मैं तुम्हें देखकर दीवाना हो गया था। इतना हुस्न, इतनी बेबाकी। मैंने उसी लम्हे तुम्हें अपना बनाने का फैसला कर लिया था। मैंने तो उसी रात तुम्हें हासिल कर लेना था अगर तुम मेरी गिरफ्त में आकर बेहोश न हो गई होती। फिर तुम्हारी अम्मा ने मौके पर आकर मेरा प्लान खराब कर दिया था। तुम्हारी अम्मा ने फौरन आयात कुरानी पढ़नी शुरू कर दी थी। मुझे मजबूरन वहां से भागना पड़ा। मैं तुम्हें वहां बेआबरू नहीं कर सकता था। मैंने कोशिश की कि तुम्हें घर से किसी तौर बाहर ले आऊं, मगर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मेरी दस्तरस से दूर कर दिया था। आज इतने माह के बाद मुझे मौका मिला है तो तुम्हें कैसे जाने दूं? अब तुम इसी घर में हमेशा रहोगी मेरे साथ। नूरुलैन की आंखें बरस उठी। वो आंसू भरी आवाज में बोली, तुम कौन हो? तुम मुझे डरा रहे हो? मुझसे मजाक कर रहे हो ना? मुझे जाने दो प्लीज। असातीर ने जवाबन एक जोरदार कहकहा लगाया और अचानक बिल्ली की शक्ल में तब्दील हो गया। नूरुलैन की आंखें दहशत से फट गईं। उसका सांस उसके सीने में अटकने लगा। उसने आंखें बंद की और सांस संवार करने की कोशिश की। उसने आंखें खोली तो असातीर मुस्कुराता हुआ उसके सामने मौजूद था। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोला, तुमने पूछा था ना कि मैं कौन हूँ? मैं एक जिन हूँ। अब तुम मेरी कैद में हो। मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ, इसलिए
अब तुम्हारा पीछा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। नूरुलैन को जिंदगी में पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि अम्मा उसे कितनी अक्ल की बातें समझाती थी, मगर वो उन्हें हमेशा कदामत पसंदाना कहकर उनका मजाक उड़ाती थी। अम्मा हमेशा कहती थी कि बेटा, मगरिब के बाद हवाई चीजें और दूसरी अल्लाह की मखलूक आजाद हो जाती हैं। ऐसे में बिस्मिल्लाह कहकर घर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मजबूरी के अलावा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मगर वो हमेशा उनकी बातों को सुनी अनसुनी कर देती। असातीर उसकी तरफ पेश कदमी करते हुए बोला, तुम मजहबी तो हरगिज नहीं हो। सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा होना तो कोई कमाल नहीं है। तुम पैदाइशी मुसलमान हो, मगर तुम्हें तो अपने मजहब की समझ बूझी नहीं। नमाज कुरान से तुम दूर भागती हो, फिल्मों की शौकीन हो, रक्स करती हो। मैंने तुम्हें रक्स करते देखा है, बड़ी महारत है तुम्हारे रक्स में। तुम्हारा झुकाव तो हिंदुओं की सकाफत की जानिब है। तुम्हारे कमरे से तिलावत की आवाज आती होती तो आज ये दिन ना देख रही होती तुम। मैंने तो जब सुना तुम्हारे कमरे से भजन ही की आवाज आती सुनी। याद है ना, हर हिंदी फिल्म का आगाज भजन से ही होता है। नूरुलैन आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तक रही थी। उसकी सब बातें दुरुस्त थी। उसे दिल ही दिल में शर्मिंदगी सी होने लगी, क्योंकि वो नाम की ही मुसलमान थी। उसकी हालत से असातीर ने महसूस होते हुए कहका लगाया और बोला, मैं तो खुद बुत परस्त हूँ, तो मैंने उसी जाने भी मुतवज्जो होना था ना जहाँ से मुझे मुसलसल बुलावा आ रहा था। मुझे इतना अरसा रोकने वाली वाहिद एक ही चीज थी, वो लॉकेट जो तुम्हारे गले में होता था। मुझ जैसे शैतान जिनको वही रोक लेता था। आज उस जड़ाऊ कीमती हार की बदौलत वो भी उतर गया। वो ये कहते हुए शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। उस वक्त उसके चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे। नूरुलैन ने खौफ के मारे आंखें मीचते हुए दीवाना वार ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारा। उसके हाथ उसका उतारा हुआ लॉकेट आ गया। उसने वो लॉकेट फुर्ती से अपने गले में डाल लिया। फिर उसने कुछ आयात का विर्द करना शुरू कर दिया। उसने डरते डरते आंख खोली। असातीर चाहते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। नूरुलैन ने अपना लॉकेट उसके हाथ से मस कर दिया। लॉकेट से मस होते ही उसके जिस्म को आग लग गई। वो तकलीफ से चीखना शुरू हो गया। नूरुलैन ने मौका गनीमत जाना और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सामने से अचानक लाफैन भागती हुई आई और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। नूरुलैन ने उसके हाथ पर भी लॉकेट मस कर दिया। वो भी चीखती हुई गिर गई और शोलों में घिर गई। देखते ही देखते पूरे घर ने आग पकड़ ली। नूरुलैन शोलों से लड़ती बाहर आई और भागते हुए छत पर जा पहुंची। उसने अपनी छत पर छलांग लगाई और भागते हुए सीढ़ियां तय करती नीचे पहुंच गई। उसकी टांगें बुरी तरह कपकपा रही थी। उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली और सुन रह गई। उसने वही आम सा नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसका मतलब है कि जो भी हुआ था वो फकत नजरबंदी का कमाल था। उसने फौरन वुजू किया और सजदा शुक्र बजा लाई। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ ईमान की दौलत है। उसे ये भी पता चल चुका था कि अंधी ख्वाहिशात और बेजान नमूदो नुमाइश हमेशा इंसान को जिल्लत और रुसवाई के गड़े में ही धकेलती है। उसने डरते डरते खाला शन्नू के घर झांका। घर में आग लगने के कोई आसार दूर दूर तक मौजूद नहीं थे। सहन में हड्डियां और गोबर के ढेर भी नजर आ रहे थे। उसने बेयकीनी से अपनी आंखें मली। वो दबे पांव चलती कमरे में गई और अम्मा के साथ लेट गई। उसने सोचा, पता नहीं आज का बीता वाकया सच्चा था या मेरे तखय्युल का कमाल था, मगर मुझे असातीर का ताना ताउम्र याद रहेगा। मैं अब इंशाअल्लाह बाअमल मुसलमान बनूंगी, क्योंकि यही मेरी हकीकी पहचान है। उसने अम्मा के हाथों को धीरे से चूमा और धीरे से। जी तो नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके या किसी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया हो या कोई हादसा हुआ हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखें। हो सकता है इस चैनल पर अगली कहानी आप ही की हो। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।